Hello, am I audible? Ah, yes, you are audible. Okay, okay. A very good evening, guys. Thank you for joining. And yeah, so we are thrilled to have you all here today to participate and be a part in this exciting opportunity. So GDSC BUP DAT, along with GDSC SIS GST, have organized a wonderful event with the community Central DAO to explore the cutting edge technology that is shaping the future of the internet. On this note, I'd like to introduce our speakers for today. We have Mr. Kushal Paliwal, a community builder and marketing head at GearFi. He is also the admin at Central DAO. He has over 2 years of experience in Web3 space. He has specialization in decentralized finance and is passionate about sharing his knowledge and experience. Next up, we have Mr. Adarsh Armin, founder of GearFi. He is also a community builder and admin at Central DAO. He has more than 2 years of experience in Web3 domain. We have Ronak Dubey. He is also a technical founder at GearFi and also an admin at Central DAO with more than 2 years of experience as a blockchain developer and builder. Thank you all for joining, first of all. And we believe that this event will be both informative and thought provoking for you all. So let's dive in and explore this new frontier. Over to you guys. I'll stop sharing my screen. And yeah, Kushal. Yeah. Thank you, Purva. Thank you for such a kind introduction. So, first of all, I would like to thank GDSC Bharati Vidyapeeth, GDSC leads of Bharati Vidyapeeth, and uh, SIGST college for arranging this session and kind onboarding. So, let's start with the session. Adarsh, you can share your screen. Hello. Yeah. Thank you. Thank you very much, Purva, for the smooth onboarding. Yeah. Am I audible, right? Yes, yes, Yeah, you are Adarsh, audible. you are audible. We are Sure. very keen to listen to you. Go ahead. Just a second. I'll present my screen. Just a second, guys. Yeah. Is the screen visible, guys? Yeah, Adarsh. Yeah, it is visible. Go Yeah. ahead. Yeah. Yeah. So yeah, as Purva told, I'm Adarsh Sharmal first, and I've been in this space from more than 2 years now, and currently working on my second startup, which is called GearFi. And at GearFi, we are building a buy now pay later marketplace for NFTs, which are non-fungible tokens. So with GearFi, we are working very closely with companies like CoinDCX, which is the largest crypto exchange in India. Companies like Elevation Capital, who funded Swiggy and Paytm, and also blockchains like Tezos and Solana. Yeah, and currently also adminning Central DAO, which is the biggest community in Central India for Web3 enthusiasts. So today I'll be talking about like the basics of Web3, what was Web 1, then Web 2 came, and what is Web 3, and the career opportunities in Web 3. Basically, the non-coding career opportunities in Web 3, and Ronak will be covering the coding and development based opportunities in the Web 3 space. So yeah, so starting off with the very basics. So what was Web 1? So during the 90s, Web 1 was the like inception of internet,
So these were basically promotional or broadcasting pages by companies. These were the static pages, so you couldn't interact with them, but the read-only pages like Yahoo. There are pages you can read, get the information. Basically, the broadcasting pages from various companies or projects. And then Web 2 came, and Web 2 was a very big step, a very pivotal change in basically the whole human society. So Web 2 was the internet where you could read as well as write. So basically, this was the internet where you could interact with the data. You could download data, you could share data, you can interact with people. And so yeah, Web 2, there were some examples of some Web 2 projects are Facebook, YouTube. YouTube is a place where you can share your knowledge, share your data, and also get the knowledge. And Facebook is a platform where you can interact with others. And then Web 3 came, and Web 3 is basically Web 2, Web 2 built on blockchain. So what does this mean? So what blockchain does is blockchain makes things decentralized. So this, the whole concept is how Web 2 works, but as in Web 2, the servers are owned by a centralized company. Like if we talk about Facebook, so Facebook owns all the data that you submit on Facebook basically. So Web 3 is the internet built on blockchain, which is decentralized. Like the data is not owned by any centralized server and is like in the hand of public. The data is very secure as it is on blockchain. It cannot be tampered, and it is public, plus it's not under a control of any centralized party. So these were the like very basics what Web3 is and how the internet in general has evolved. And coming to the opportunities, so as I've told that Ronak will cover the coding related opportunities, and many people think like कि जो Web3 space है, it is all about development, it is all about coding, but this is a very welcoming space. If you are a coder, or you are someone who knows how to code but are trying to explore other things as well, or you are someone who has not written a single line of code ever, this is a space with like ample of opportunities. There are many opportunities. In fact, I am someone who has never written a single line of code, but I'm doing pretty well in the Web3 space. So yeah, if you are not a coder, this session is for you as well, because there are many opportunities as for you. So yeah, coming to like why you have a value when you are not a coder. Like जब आप कोड नहीं कर पाते, इसके बाद भी why you can put the value in the Web3 community or in the Web3 ecosystem. So there are three major points to it. So, and like I personally in Central DAO as well in GFI, I work on community building part. And this is the second major part in the Web3 space other than the coding part. So why community building is important. So for first point is marketing. So this is a very general point, like how marketing your product or building a market is important in any general business. Suppose you own a toy shop or you have a tech startup. So why marketing is important in these kind of business, the same is in Web3. Because if you are building a product or if you are building a service, you need people to buy the product, you need people to use that service. And that is the first reason why marketing or building the community of people who are interested in your product is important. And coming to the second two major points, which makes the community building part or these non-coding, non-development jobs important in Web3 are these two reasons. First is DAO. So a DAO is basically a decentralized autonomous organization. So how as I've told, Web3 is built on blockchain, so things are decentralized. Like there are projects who are not like these kind of projects are not run by a single person or a single company. Like Facebook is run by Mark Zuckerberg, right? But ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो कोई एक आदमी रन नहीं करता. These projects are run by the community, and that is why these are called decentralized autonomous organization. So suppose example, if Facebook was a Web3 product, तो कोई भी change आता in Facebook, so it would have been like the decision would have been made by the whole community. जो भी Facebook
की कम्युनिटी का पार्ट है वो डिसाइड करते कि what decisions should be made, how the data should be used. So this is one thing why building a community and administering that community is important in Web3, क्योंकि basically the whole Web3 is run by the community, as I've told. And third reason is basically the money, cause blockchain is run by a cryptocurrency. Like money in the Web3 space is a crypto, and for a crypto to have value, like it completely depends on the demand and the supply. And to increase the demand, you have to create value and create a community of people who actually use the product, actually believe in the product. So these are the basic reasons why community building is important in the Web3 space. And you can, even if you are not a coder, you can start with it. So yeah, coming to this analogy, you guys must have heard of Logan Paul and KSI, two very famous YouTubers, and they recently started a hydration drink brand called Prime. And one interesting fact about it is like they actually didn't come up with the idea of Prime, and they don't own the product. Someone came to them and pitched the product, and they just branded it as if they built the product. And why did this happen? Because they had the value, they already had the community, they have millions of subscribers on YouTube who follow them very passionately, who follow like everything they do on internet. The like काफी ज्यादा इन्हें follow किया जाता है, and that is the reason it worked. Like these people came to them and pitched the and asked. Kushal, there's some disturbance. If you can turn off the mic or whoever is it. Yeah. Hello. Shall I continue, guys? Yeah, Adarsh. Please continue. Yes, yes. So this is one great example why community is very important, because you already have a market of people, like people trust them. So whatever, even if it was not this product, a hydration brick, suppose any other product, but people would have like trusted the product, bought the product because they believe in these two people. And this is the power of community, and this is the power of marketing. And yeah, so coming to the non-coding opportunities in the Web3 space. So we can, yeah, like start off with DevRel. So what a DevRel is, DevRel is basically stands for developer relations. So these are basically guys who know like a little bit about how to code, but they don't necessarily want to go in that direction. Like they want to explore other directions. So these are the guys who basically are building कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स. तो ये लोग अपनी जिस भी कंपनी में काम करते हैं, दे गो अराउंड एंड लुक फॉर पीपल हु वांट टू जॉइन देयर कम्युनिटी एज अ डेवलपर, एंड दे बिल्ड देयर कम्युनिटी. So this is one very great job opportunity. In fact, there's a friend of mine. He is working as a DevRel in one company, and he's earning more than 3.5 lakhs per month as a DevRel. So this is a great opportunity. You can be a technical writer. So one very important thing in the Web3 space is to, like, as it is a decentralized space, you have to be very open. The whole community has to know what is the kind of product you are building. And there's this thing called white paper. If you guys have heard of it, Bitcoin. If you've heard of Bitcoin, Bitcoin का काफी famous white paper है. You should definitely go through it once if you are starting in the Web3 space. So these documents like white paper, light paper, and like some companies nowadays, they use Gitbook for this. So these are the technical documents, because the Web3 is a technical space, and there has to be someone who don't necessarily knows how to code, but knows the technicalities behind the things and knows how to like write these technical things down in a paper, so that the people who the community basically can go through it and can understand the project and understand the technical aspects behind it. There's a job for customer support. So these are the people who like try to like जो भी product में दिक्कतें हैं या any suggestions that users give. So these are the people who talk to the customers on regular basis and try to understand the problems or any kind of like lags they are facing with the product.
You can be a tokenomics expert. So as I've talked about money, which is basically crypto in the Web3 space. So tokenomics is deciding how many cryptos or how many tokens of a currency there has to be, how many tokens should be circulated in the market, or how many tokens has to be reserved. So if you have guys, some of you must know this, like Bitcoin, there's 21, like the total cap of Bitcoin has been limited to 21 million, and that is the limit of Bitcoin, and it has been coded. So, and currently there has been over 19 million Bitcoins minted and are in float in the market. So what tokenomics expert do, they decide how many tokens should float in the market, or how many tokens in total should be minted. You can be a DAO administrator. So these are the people who basically manage the community. They see, like, if, like, is the community participating actively, क्या लोग vote कर रहे हैं, if a product is like, if someone from the technical side is suggesting a change in the product, so they look around की community कितनी active है, like all the people are they voting on the change, like how the product should look, or on like any kind of financial stuff as well. You can be a content creator. कंटेंट क्रिएटर की काफी ज्यादा वैल्यू है इन द Web3 स्पेस. लाइक दे आर पीपल हु आर building great communities on YouTube and Twitter by just regularly posting the content and trying to educate people. And it is one of the favorite streams I like, non-coding streams in, like, personally, in the Web3 space. You can be a UI UX designer. So this is like coding on to some level, but like very easy and the initial stage of coding. You, cause every company, every project has to have a front end part to it. In fact, if you don't know how to code, you can use illustrators, and else you can become like an NFT artist. Like, you guys must have heard of bored like apes selling for $1 million, or these silly like kittens or cat like creatures, people creating their NFTs and selling for $1-2 million. So you can basically learn how to design things and become a digital artist, or you can start your own venture, like we are working on GFI. Yeah, so the main question, like, these were the streams, these were the opportunities in the Web3 space, but how to start? And my answer to this is like, to start small. And one very major thing that you have to realize is non-coding does not mean non-tech, because this blockchain is a new technology, emerging technology, and you have to understand how it works. You have to understand how Bitcoin works. You have to understand how these transactions work, how a dApp, a decentralized application, works. Does not mean like that you have to learn how to code, but you have to understand the technology, and that is a very important part, because to be a technical writer, or basically to, if you're like thinking of to start your own venture in the Web3 space, you have to learn about the technology. It is very important. Try to start with, like, as I've just told, try to read the Bitcoin white paper once, and like, it is a great way to start. And in fact, on the coding side, Ronak will share the resources as well. And the best way to actually like get into any kind of space is to join communities, because this is a great any kind of community on Discord or on Telegram. They are a great way to just hello. Yeah, so joining communities are a great way to get into any space, because you get to interact with like-minded people. You be updated of things happening in the space, and like, learn. If you start to learn, then try to create the content, try to post YouTube videos, try to write blogs of whatever you learn, try to tweet regularly or post on LinkedIn. And because like, creating content and showcasing it are very, like, two very important aspects to grow the community. Even if you don't have any product as of now,
But if you have a community of people, I gave the example of KSI and Logan Paul, if you have a community of people who trust you, and educating people is a great way to build that trust and to build that community. So start off by creating content and showcase your content. And one very important thing is to reach out. And this is a very open space. Like there's no conventional way to get into web3. like ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कॉलेज में कंपनी आ रही है और एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको ये करना है एंड देन यू गेट टू द इंटरव्यू स्टेज है और फिर आपको जॉब लगेगी. ये काफ़ी ओपन स्पेस है. like there are many friends of mine who just tweet, like comment in some companies like a post, and they figure out some flaw in the product or some or they try to help the community of these companies through content, and they usually land up with a great job. So reaching out to people on Twitter and on LinkedIn is a very important step to start into web3, and especially to land a job. And even if you are an entrepreneur and creating your own venture, it is very important to network around. And so try to reach out to people who have been in this space for a while and try to network around. So yeah, these are the steps you should follow, to actually land these opportunities that I've told in the previous slide. And now, why to join Central DAO? So basically, we started Central DAO with a motive to bridge the opportunity gap in tier 2 cities, especially in central India. And now we are moving to tier 1 cities like Mumbai, Hyderabad, Chennai. And our purpose with Central DAO is to help people who are just starting out in the web3 space, or who are just exploring the web3 space or looking to network around. Central DAO is just the place for you. And we host events like this. We recently host a series of events called Decentralized Carnival, where we got amazing speakers who talked about their journey and share many opportunities. You should join the community for job and internship opportunities. There are people regularly posting internship and job opportunities in the company, and we are regularly posting educational content as well, and updates about grants and hackathons happening in the space. And yeah, the last point, it is a great place to network around. And cause building the network is a very important step to start, not only in web3 but in any stream you want to get in. So yes guys, that's it from my side. Thank you very much. Ronak? Yeah. Okay. All right. Just give me a second. Am I audible? Yeah. Okay. So first of all, welcome everyone. And ये space थोड़ी intimidating है, थोड़ी नई technology है. But since you guys have taken this step of joining this webinar, पहला step ले लिया, तो अब आगे भी ना चीजें आसानी होती जाएंगी. ठीक है. So Adarsh, can you just stop presenting so that I can present my screen? Is my screen visible? Can somebody let me know if my screen is Yeah, visible? Ronak, your screen is visible. Yeah, great. Okay, तो सेकेंडली मैं एक्चुअली अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसकी वजह से मैं माइक भी चालू नहीं कर पाऊंगा. एंड थर्डली, दोनों कॉलेजेस इंदौर से ही हैं, सेंट्रल इंडिया से. सो आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर कंफर्टेबल विथ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि मैं आगे हिंदी में भी काफ़ी कंटिन्यू करूँगा. एज ए सेड, स्पेस ऑलरेडी बहुत इंटिमिडेटिंग है एक बिगनर के लिए, और उसमें फिर आप जार्गन्स ले आते हो, आप बड़े बड़े वर्ड्स ले आते हो, लोगों को समझ नहीं आता बहुत. सो my session is about decoding blockchain. Okay, so let's just try to understand क्या है blockchain, क्यों है blockchain, क्या ज़रूरत है हमें, क्यों हम बात भी करें इस पे. ठीक है. So next slide का. So what you will learn by the end of this session, you will be comfortable with the basics of blockchain, most commonly used jargons यानी कि जो words blockchain में use होते हैं बहुत सारे नए.
तो उनका क्या मीनिंग है, क्यों यूज होते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट। जो भी यहाँ डेवलपर्स हैं अभी इस मीट में, उन्हें आगे कैसे अपना डेवलपमेंट जर्नी चालू करना है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब मैं बता दूंगा। लास्ट इज रिसोर्सेज टू फॉलो। अगेन जो भी रिसोर्सेज आपको इस सेशन के बाद, ये खत्म होगा, ये मीट खत्म होगा, तो अब आपको घर जाके, क्या घर पे ही है वैसे तो सब, अब क्या करना है नेक्स्ट, आई विल टेल यू गाइस। ओके, सो सबसे पहले तो वाई चूज ब्लॉकचेन, हम इसकी बात ही क्यों करें, लाइक क्या ज़रूरत है। सबसे पहले 41% ऑफ द लिस्टेड ब्लॉकचेन जॉब्स आर रिमोट, ठीक है। सो रिमोट जॉब्स हैं, विच मीन्स कि आप इंडिया में बैठ के अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर सकते हो, और आप बाहर की, तो आपका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपको यू नो यू कैन जस्ट चिल इन गोवा, यू कैन चिल इन ऋषिकेश, बढ़िया किसी भी हॉस्टल में बैठो, तो आपको यू कैन रिमोटली वर्क। बहुत ज़्यादा, जैसे आज भी बहुत बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। एंड देन जो अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ है, वो पिछले साल से 118% देखने मिली है। सो इवन दो द ब्लॉकचेन मार्केट हैज़ गॉन डाउन, द क्रिप्टो मार्केट हैज़ गॉन डाउन, देयर इज अ बेयर मार्केट राइट नाउ, स्टिल डेवलपमेंट साइड अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हुई हैं। स्टार्टअप्स एक के बाद एक आ रहे हैं, कॉरपोरेशंस हायर कर रही हैं। इवन जो हमारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस है, TCS हुई, इन्फोसिस हुई, इवन दे आर डाइविंग डीप इनटू दिस स्पेस, राइट। एवरेज सैलरी इंडिया में बात करूँ तो 6.4 LPA है, globally it is more than 100K dollars. Okay, so it's a really great salary for beginners. एंड अगेन जैसा मैंने बताया, 41% ऑफ द जॉब्स आर रिमोट, सो आप कर सकते हो अप्लाई। आपको लिंक्डइन, जैसा आदर्श ने भी बताया, मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की ज़रूरत है। सो यू कैन एक्टिवली लुक इनटू जॉब्स। आप लिंक्डइन पे जाओ, अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, प्रोजेक्ट पे काम करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन लैंड अ जॉब ईजिली। Why? Because there is a huge talent deficit right now, due to which there's an increased demand. तो अच्छे डेवलपर्स की ज़रूरत है इस स्पेस को बहुत ज़्यादा। हम इवन हमारे स्टार्टअप को अच्छे डेवलपर्स की ज़रूरत है, पर अच्छे डेवलपर्स है नहीं, ठीक है। लोग महीने 2 महीने काम करके छोड़ देते हैं। सो लाइक यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर स्किल। आपके पास टैलेंट है तो बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको हायर करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? It's a public, immutable and decentralized database which is used to store transactions. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑलरेडी डेवलपर्स जिनने ज्वाइन किया है, उन्हें डेटाबेस समझ आता होगा। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज समथिंग वी यूज टू स्टोर डेटा, यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए। तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो बेसिकली एक डेटाबेस ही है। हम एक नए डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3, विच इज़ पब्लिक। ये सबसे बड़ी बात है कि ये डेटाबेस जो है ये पब्लिक है, प्राइवेट डेटाबेस नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बेसिकली मेटा के जो सर्वर्स हो गए, गूगल के सर्वर्स हो गए, ये सारे प्राइवेट डेटाबेसेस है, राइट। आपके पास परमिशंस और ये सब नहीं होती है, आपको ब्लॉकचेन में उसकी नीड नहीं है। इम्यूटेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये हाईलाइटेड वर्ड्स एक के बाद एक मैं स्लाइड में कवर कर लूंगा, तो अभी बहुत इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है। अभी बस ये समझो कि ब्लॉकचेन सिंपली एक डेटाबेस है जो कि पब्लिक, इम्यूटेबल और डिसेंट्रलाइज्ड है, विच इज़ यूज टू स्टोर ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन का मतलब बेसिकली होता है any kind of operation that you do on a database, you call that a transaction, right? तो आप राइट ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हो तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। अगर आप डेटाबेस में कोई भी स्टेट चेंज कर रहे हो, कोई भी चेंज कर रहे हो, बेसिकली दैट इज ट्रांजेक्शन। ओके, सो व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक जैसे मैंने बताया कि पब्लिक के केस में क्या होता है कि मेटा के सर्वर्स जो है, सो आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, राइट। आप अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हो, अपनी फोटोज अपलोड करते हो, ये सब करते हो, बट आप जिसको फॉलो नहीं करते आप उसका नहीं देख सकते, राइट। तो इट्स लाइक इंफॉर्मेशन कितनी आप एक्सेस कर सकते हो, ये किसी और के हाथ में है। ये एक सेंट्रलाइज सर्वर है, ये कंपनीज कंट्रोल करती है, ये आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो उस उनके सर्वर्स में वो कैसे डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, क्या एल्गोरिदम्स हैं, uh, ये सब आपके हाथ में है नहीं, यू डोंट रियली नो दैट। प्लस इशू क्या है? लेट्स से आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, आपने रील बनाना चालू की, 2 4 6 क्रिंज सी, एंड नाउ यू आर वायरल। सो आपके लेट्स 2 3 महीने बाद 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, बट इंस्टाग्राम का कल मन हुआ, राइट, तो वो आपका 1 सेकंड में अकाउंट डिलीट कर सकता है और आपका करियर खत्म कर सकता है, फिर वापस से जाके वही जॉब करो ऑफिस में बैठ के। सो द प्रॉब्लम हियर इज यू डोंट ओन द डेटा, दे ओन योर डेटा। दे हैव प्राइवेट सर्वर्स, दे आर नॉट पब्लिक सर्वर्स।
कितना किस अमाउंट में कैसे किस टाइम एक्सेस करना है, ये सब वो कंट्रोल करते हैं, आप नहीं। ब्लॉकचेन के केस में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन इज पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब है? परमिशनलेस। अब दोनों टाइप की होती है, कुछ परमिशन होती है। अभी हम जनरल बातें करते हैं। हम जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन है, उसकी बात करते हैं, सोलाना, ये बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स की बात करें तो ये सारी ब्लॉकचेन्स पब्लिक है, विच मीन्स आपको कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। उस पर जितना भी डेटा पड़ा है आप सारा रीड कर सकते हो, ठीक है। किसके अकाउंट में कितना पैसा है, इवन वो भी जाके चेक कर सकते हो। कौन कौन सा टोकन ओन करता है, कौन सा एसेट ओन करता है, वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो आप सारा डेटा रीड कर सकते हो, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम आप राइट भी कर सकते हो। आपको जो जो भी चेंज करना है, ब्लॉकचेन इट्स अ डेटाबेस, आपको उसमें जो भी डेटा राइट करना है यू कैन डू दैट। यू डोंट नीड स्पेशल परमिशंस फॉर दैट, ठीक है। और ट्रांजेक्शन में अपन आगे बात करेंगे कि आप राइट कैसे कर सकते हो बेसिकली। इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल का मतलब होता है, म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी मॉडिफाइड, दैट कैन बी चेंज्ड। ब्लॉकचेन के केस में क्या है, सिंस पब्लिक है, राइट, तो अब मैंने आज कुछ लेट्स से मैंने जाके चेंज कर दिया कुछ भी डेटा, मैंने मेरा डेटा डाला, अब पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब कोई और जाके उसको डिलीट कर दे तो सो व्हाट इम्यूटेबिलिटी मीन्स, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार जो लिखा गया ब्लॉकचेन पे, इट विल स्टे देयर फॉर एवर, फॉर एवर, वो कभी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है, सब कुछ है, वो इम्यूटेबल है, वो ना रिवर्स किए जा सकते हैं, वो ना मॉडिफाई किए जा सकते हैं, वो ना डिलीट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? सेंट्रलाइज कौन से हो गए? सेंट्रलाइज हो गए अपने मेटा के सर्वर्स, गूगल के सर्वर्स, AWS, ठीक है। ये सब सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं, यानी कि कोई कंपनी ने इन्वेस्ट किया, उनने सर्वर स्पेस लाइक मतलब अपने सर्वर्स बनाए, डेटा सेंटर्स बनाए बड़े बड़े, राइट। तो वो लाइक दे लोकली अवेलेबल है वो, ठीक है। मतलब वैसे तो हम यहाँ से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, बट टॉकिंग अबाउट द सर्वर्स, वो वहाँ पे एक जगह लोकलाइज्ड है उनके डेटा सेंटर्स में, प्लस वो लोग कंट्रोल करते हैं उसे, ठीक है। ब्लॉकचेन के केस में क्या होता है, कोई सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, किसी एक आदमी के पास नहीं है, तो नोड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये नोड्स का क्या काम होता है, जैसे इवन आप और मैं, हम में से कोई भी एक नोड बन सकता है ब्लॉकचेन का, यानी कि पार्ट बन सकता है। फिर जो हमारे पास मशीन है अभी, जैसे जो भी लैपटॉप है या ये है, आप उसमें पूरी की पूरी एक कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन डाल सकते हो और लाइव कर सकते हो, विच मीन्स आप भी सर्वर का पार्ट बन सकते हो। तो डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी बैठा हो सकता है। इंडिया में अगर माइनिंग और वो सब सुना हो तो वो माइनर्स जो होते हैं वो एक्चुअली स्पेशल नोड्स ही होते हैं, जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे थे लोग, राइट। तो वो भी नोड्स होते हैं उन, तो कोई भी कर सकता है ये, राइट। तो एक जगह डेटा नहीं पड़ा हुआ है, डेटा हजारों मशीन्स में, लैपटॉप्स में, हार्ड ड्राइव्स में इधर पड़ा हुआ है, डिफरेंट 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 पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे अब किसी किसी एक की मशीन बंद हो गई, खराब हो गई, चेंज कर दिया, तो उससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी कॉपीज हैं और बहुत सारे लोगों के पास है। ट्रांजेक्शन्स जैसा मैंने बताया, जो राइट ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। आपको कोई भी ब्लॉकचेन की स्टेट में चेंज करना है, आपने मान लो आदर्श वांट्स टू सेंड मी 1 बिटकॉइन, तो वो जो बिटकॉइन सेंड करेगा तो ब्लॉकचेन में उसके में से माइनस होगा, मेरे में प्लस होगा 1 बिटकॉइन, विच इज़ अ ट्रांजेक्शन, राइट। जो ब्लॉकचेन की करंट स्टेट है वो चेंज हो जाएगी इस ट्रांजेक्शन के पास। लेट्स से आदर्श के पास अगर 4 बिटकॉइन थे, तो अब उसके पास 3 बिटकॉइन हो चुके हैं करंट स्टेट में, और मेरे पास अगर 100 थे तो अब मेरे पास 101 हो चुके हैं, बिकॉज आई एम समवेयर रिचर देन अदर्स एनीवेज। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो ये ट्रांजेक्शन्स क्या है? ट्रांजेक्शन्स अब ये क्यों होंगे, लाइक माइनस हैं, ये सब है, इनको क्या फ़ायदा है? मैं क्यों अपनी मशीन वेस्ट कर दूँ, मैं क्यों लगा दूँ, मैं क्यों बनूँ एक नोड? तो एक कॉन्सेप्ट होता है गैस फी का, विच इज़ रीड, जो भी रीड ऑपरेशंस है, जो भी आपको डेटा रीड करना है ब्लॉकचेन से, ठीक है, आपको जाके देखना है कुछ भी, किसी के फंड्स देखने हैं, एसेट्स देखने हैं, ओनरशिप देखनी है, कुछ भी देखना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको राइट करना है, एज इन आदर्श वांट्स टू सेंड मी 1 बिटकॉइन, तो एक गैस फी कटती है, विच इज काइंड ऑफ अ सर्विस फी, आप एक पे करते हो, राइट। तो हो सकता है उसको मेरे को 1 बिटकॉइन भेजना हो, पर साथ ही साथ उसकी गैस 0.003 बिटकॉइन की लग सकती है, तो वो टोटल ट्रांजेक्शन जो वो पे करेगा, वो एक्चुअली 1 बिटकॉइन से ज़्यादा पे करेगा, वो मुझे पे करेगा 1.003 बिटकॉइन। और ये 003 बिटकॉइन कहाँ गया? ये उस माइनर के पास गया जिसने अपना खर्चा किया है, सेटअप लगाया है, नोड बना है वो इसका, ठीक है। उसके पास एक कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन है। ये क्या होने लगा? ठीक है, लेट्स
हाउ नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सब कैसे पॉसिबल है? लाइक पब्लिक होने के बाद डेटा सिक्योर कैसे है? जब सबके पास है तो हाउ सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करोगे? इम्यूटेबिलिटी कैसे है जब एनीवन कैन एक्सेस द डेटा, कैन चेंज द डेटा? then how are we achieving immutability and how are we achieving decentralization, right? तो इम्यूटेबिलिटी पे पहले बात करते हैं। इम्यूटेबिलिटी कैसे होती है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हैशिंग, ठीक है? तो जो भी यहाँ CS बैकग्राउंड से है, अगर उनने किसी ने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है तो दे वुड ऑलरेडी नो हैशिंग क्या होता है। ये तो सिंपलेस्ट वे में हैशिंग एक फंक्शन होता है बेसिकली। आप उसमें कुछ भी फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मान लेते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग पास की, मैंने मेरा नाम पास किया ROUNAK। तो हैशिंग फंक्शन में जब मैं वो पास करूंगा तो वो आउटपुट देगा मुझे। और ये आउटपुट क्या होता है? ये आउटपुट एक फिक्स्ड लेंथ का नंबर होता है और ये यूनिक होता है हर एक इनपुट के लिए। एज इन मैंने अगर मेरा नाम लिखा है कैपिटल ROUNAK तो उसके लिए एक अलग हेक्साडेसिमल नंबर निकल के आएगा। और मान लो मैं उसको स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल ROUNAK, तो एक कंप्लीटली रैंडम, कंप्लीटली डिफरेंट नंबर निकल के आएगा जो गैस करना मुश्किल है किसी के लिए भी, ठीक है? तो हैशिंग में क्या होता है? ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन इज चेन ऑफ ब्लॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं। तो हर ब्लॉक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है डेटा, जो भी डेटा आपको राइट करना है, जो भी डेटा आप पास करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो डेटा। फिर होता है हैश ऑफ करेंट ब्लॉक, ठीक है? करेंट डेटा जो है आपका, उसका हैश निकल के आएगा, वो भी इसी ब्लॉक में है। साथ ही साथ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, तो पिछले ब्लॉक का भी हैश सेव रहता है उसी ब्लॉक के अंदर। सो नाउ इम्यूटेबिलिटी पे बात कर रहे थे ना, तो अब मान लो कि मैं करेंटली ब्लॉकचेन में 2000 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? जो मैंने अभी रिसेंटली डेटा राइट किया है वो 2000 ब्लॉक में हुआ है। अब मैं वापस जाता हूँ और मैं 1000 ब्लॉक में जाके चेंज करना चाहता हूँ। मैं आदर्श के जो 3 बिटकॉइन है उसको 300 बिटकॉइन कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं पीछे जाता हूँ ब्लॉक्स में, लेट्स से 1000 नंबर के ब्लॉक में, और मैं वहां जाके चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे क्या होगा? अब उसका डेटा चेंज हुआ तो हैश चेंज हो गया करंट का, ठीक है? और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में यानी 1001 ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश भी था, तो अब इसका चेंज हुआ तो उसका भी चेंज हो गया। और उसका जो हैश चेंज हुआ तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली हर ब्लॉक का, 1000 ब्लॉक के बाद जितने भी ब्लॉक है उन सब का हैश चेंज हो जाएगा। यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट, एक कंप्लीटली नई ब्लॉकचेन की कॉपी निकल के आएगी। और जितने भी माइनर्स हैं इन सब के पास एक एक कॉपी होती है, तो वो मैच करेंगे कि हमारी कॉपी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो उनको दिख जाएगा कि यार हमारे पास तो अलग कॉपी है और ये जो करंट चेंज करना चाह रहा है ये नया नोड, ये इसके 1000 से लेकर 2000 ब्लॉक तक सारे डिफरेंट है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे उसको, डिस्कार्ड कर देंगे। दैट इज वाई इट इज वेरी हार्ड टू चेंज डेटा इन ब्लॉकचेन। आप पीछे जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद से सारा का सारा डेटा चेंज हो जाएगा और इसकी कॉपी सबके पास है, तो वो मैच कर सकते हैं कि ये, और उससे पता चल जाएगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ी कर दी गई है। दैट्स हाउ इट इज इम्यूटेबल बिकॉज ऑफ हैशिंग। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज कैसे पॉसिबल है, राइट? कि इतने सारे नोड्स जो होते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नोड्स। नोड क्या होता है? नोड बेसिकली एक पार्टिसिपेंट है किसी भी नेटवर्क का, एक पार्टिसिपेंट जो होता है। जैसे मान लो घर में तुमने अपने लैन सर्वर बना लिया, तो उसके अंदर आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड है लैन से, आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है लेट्स से, और टीवी इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड वेरियस अदर डिवाइसेज आर कनेक्टेड। तो ईच एंड एवरी डिवाइस इज कॉल्ड नोड ऑफ द नेटवर्क। जो भी डिवाइस कनेक्टेड होती है एक नेटवर्क से, अभी भी जैसे हम अगर अपना फ़ोन खोलते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, तो हम काइंड ऑफ देखा जाए तो एक नोड ही हो गए वहाँ भी, राइट? बिकॉज वी आर एक्सेसिंग द नेटवर्क समहाउ। तो ब्लॉकचेन में भी ऐसे नोड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो कि एक्चुअली उस डेटा को जा करके एक्सेस करते हैं, राइट? तो अब जो भी चेंज होना है ये कैसे कैसे फाइनलाइज होगा? यानी कि मैं अगर आदर्श को लेजिट वे में एक बिटकॉइन सेंड करना चाहता हूँ, तो ये कैसे जा करके सेव होगा? तो उसके लिए एक मैकेनिज्म फॉलो होता है विच इज कंसेंसस मैकेनिज्म इन केस ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो उस द पॉइंट इज कि मोर देन 50% ऑफ द नोड्स, तो लेट्स से 6000 नोड हैं बिटकॉइन के पूरे वर्ल्ड में, तो जब 3000 से ज्यादा लोग अग्री करेंगे एक चेंज पे, तभी जाके वो चेंज होगा, राइट? तो
जैसे ही मैंने मान लो रिक्वेस्ट सेंड की एक बिटकॉइन लाइक टू राइट दिस ट्रांजेक्शन की, एक बिटकॉइन मेरे में से माइनस करके आदर्श के में प्लस कर दो, तो पहले चेक करेंगे कि कोई मेरी कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन में कुछ डिफरेंट तो नहीं है, कोई पीछे से कुछ हुआ तो नहीं है, बस एक नया ब्लॉक ही ऐड करना है ना। तो दे विल मैच द कॉपी ऑफ देयर ब्लॉकचेन विथ माय कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन, और अगर वो मैच कर जाती है एंड मोर देन 50% ऑफ द nodes agree on it, then that will be written to the main blockchain। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि मतलब एक सेंट्रलाइज सर्वर है, आपको उसमें छेड़खानी करनी है तो आपको जाके एक आदमी को मनाना पड़ेगा कि ये ले भाई ऐसा ऐसा कुछ कर दे सर्वर में चेंज। बट यहाँ पे पहली बात तो आपको पता ही नहीं है सारे नोड्स एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, कुछ एशिया में है, कुछ यूरोप में है, कुछ रशिया में है। सो यू हैव नो क्लू कि ये लोग आते कहाँ से हैं, राइट। और अगर आप पता भी कर लो तो आपको अगेन मोर देन 50% लोगों की अग्रीमेंट चाहिए, तब जाके आप ब्लॉकचेन चेंज कर सकते हो। तो जैसे जैसे नोड्स ऐड होते जाते हैं और जैसे जैसे ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं, एक ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और बढ़ती जाती है। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना ज़्यादा नेटवर्क आएगा, एक ब्लॉकचेन उतनी ज़्यादा सिक्योर होती जाएगी। अब पब्लिक की बात करते हैं, राइट, कि पब्लिक होने के बाद लाइक हाउ इज पब्लिक पॉसिबल, पब्लिक होना कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए भी अगेन क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है विच इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। तो एक हम सेट ऑफ कीज यूज़ करते हैं इसमें, राइट। कीज टू सिंपली अंडरस्टैंड की क्या होती है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि की भी एक फंक्शन है बेसिकली डेवलपमेंट साइड पे। तो एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, और ये हर आदमी की होती है। एवरी सिंगल पर्सन ऑन ब्लॉकचेन हैज़ अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट की। तो पब्लिक की वो होती है जो आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, प्राइवेट की कभी किसी से भी शेयर मत करना, राइट। तो अब जैसे मेरे को आदर्श को भेजना है, लेट्स से 1 बिटकॉइन ही भेजना है, तो अब हज़ारों लाखों लोग हैं ब्लॉकचेन पे, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा आदर्श कौन है। तो उसके लिए मुझे लगेगी पब्लिक की, यानी उसका पब्लिक एड्रेस। इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि ये आपकी ईमेल आईडी जैसा है, राइट। किसी को भी आपको कुछ भी ईमेल सेंड करना है या कुछ सेंड करना है, तो आप उसको अपनी ईमेल आईडी देते हो ना कि ये आईडी है भाई, इसमें करना। और हर ईमेल आईडी अलग बंदे की अलग अलग होती है, ठीक है। सिमिलरली पब्लिक की जो होती है एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में, वो हर बंदे की अलग होती है। एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ यूनिक पब्लिक की, एंड दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आपको उससे इंटरेक्ट करना है, आपको उसको डेटा सेंड करना है, आपको उसको मनी सेंड करना है, तो आपको उसकी पब्लिक की लगेगी। अब मैं आदर्श को एक बिटकॉइन भेजना चाहता हूँ, मेरे पास 100 बिटकॉइन है, ठीक है। तो मैं अपना वॉलेट कैसे एक्सेस करूँगा, मैं अपना अकाउंट कैसे एक्सेस करूँगा। तो उसे एक्सेस करने के लिए, उस फंड को, उन 100 बिटकॉइंस को एक्सेस करने के लिए मुझे प्राइवेट की लगेगी मेरी। इसलिए आई एम सेइंग कि यू गाइज व्हेन यू स्टार्ट योर डेवलपमेंट जर्नी, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब, तो बहुत बार होगा कि आपको अपनी प्राइवेट की पास करनी पड़ेगी डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। तब एक काम करना, .env फाइल बनाना, उसमें अपनी प्राइवेट कीज रखना, और गेट इग्नोर में .env ऐड कर देना, तो आपकी प्राइवेट की पब्लिक नहीं होगी कभी। और अपनी प्राइवेट की कभी किसी को नहीं देना, क्योंकि अगर किसी के पास आपकी प्राइवेट की पहुंच चुकी है, तो नाउ दे कैन एक्सेस ऑल द फंड्स यू हैव, they can basically become you on the blockchain। So this is the whole concept। So everybody has a public key and a private key। public key से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, प्राइवेट की से वो खुद अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट, मेन चीज़ जो है यहाँ पे जितने लोग वेट कर रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़े, क्या किया जाए, डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं दो टाइप के डेवलपर्स या दो टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक होता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और एक होता है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट बेसिकली हो गया ब्लॉकचेन के कोर आर्किटेक्चर पे काम करना, ब्लॉकचेन बनाना, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है, कंपनीज खुद प्राइवेट ब्लॉकचेन्स पे काम कर रही हैं अपनी अपनी ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बाय द वे, अभी इसने थोड़े समय पहले से पिकअप कर लिया है। तो काफ़ी 1990s में आया था ये कॉन्सेप्ट, और बैंक्स वर यूजिंग ब्लॉकचेन, पीपल वर यूजिंग प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। सो अभी भी सप्लाई चेन में बहुत यूज़ होती है, बैंक साइड बहुत यूज़ होती है, तो बैंक अपने प्राइवेट ब्लॉकचेन्स बनाते हैं। तो उनको ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट बेसिकली लगता है, एक ब्लॉकचेन डेवलपर। उसका काम क्या होता है, वो जो एल्गोरिदम्स हैं, ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म्स हैं, ब्लॉकचेन में कैसे डिफरेंट जैसे कंसेंसस मैकेनिज्म एक चीज़ हो गई, और एल्गोरिदम्स डिफरेंट डिफरेंट, ये सब इस पे काम करता है एक ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट। तो आपको ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट बनने के लिए या ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चाहिए जाएगा, सबसे पहले यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कैसे वर्क करती है,
पब्लिक प्राइवेट कीज कैसे वर्क करती है, हैशिंग कैसे वर्क करती है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो फिर आप आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे, कोई सेंस ही नहीं आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले तो जाके क्रिप्टोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। सेकेंडली, आपको कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। इन लैंग्वेजेस में आप बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ब्लॉकचेन को, जो जो भी आपका कोर लॉजिक है वो आप इस इन लैंग्वेजेस में लिखते हो, ठीक है। और फिर हो गया DSA। DSA की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है अपनी ब्लॉकचेन को या कैसे डेटा स्टोर होगा, तो उसके लिए आपको DSA आना ज़रूरी है। DSA क्या होता है, ये इफ़ यू गाइस डोंट नो येट, सो यू कैन गो एंड गूगल आफ्टर द लेक्चर। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा किस फॉर्म में स्टोर होना है, राइट, और क्या एल्गोरिथम्स यूज़ करनी है, इस टॉपिक के अंडर वो आता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है CS के लिए, या इवन कोई भी और ब्रांच जिसको आगे जाके इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन दिस स्पेस, तो डजेंट मैटर आप ब्लॉकचेन साइड जाओ, कहीं भी जाओ, DSA पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो यू विल हैव टू फोकस ऑन DSA। तो DSA तो मत छोड़ना, चाहे Web 2 पे काम करो, चाहे Web 3 पे काम करो, DSA पे काम करो ही करो। क्रिप्टोग्राफी एक सब्जेक्ट है, CSIT वालों को आई जाएगा इवेंचुअली। जो बाकी ब्रांचेस वाले हैं जाके पढ़ लो, बड़ा इजी सा है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज आई एम गेसिंग अगर कोई भी थोड़ा भी एंथुजियास्टिक है कोडिंग साइड, तो उसने या तो C पे, मतलब C में तो वैसे C में भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, पर मत ही करो, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है वो। C++, जावा या पाइथन में से कुछ ना कुछ पढ़ी होगी। सो यू कैन गो कोई ट्यूटोरियल, यू कैन गो एंड चेक आउट अ ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब कि कैसे इन लैंग्वेजेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉकचेन ऐप डेवलपमेंट। तो एक तो हो गया कोर ब्लॉकचेन पे काम करना यानी ब्लॉकचेन बनाना। दूसरा ये हो गया जो बनी बनाई ब्लॉकचेन है जैसे कि इथेरियम है और सोलाना है, ये सारी ब्लॉकचेन्स है। अगर आपको इसके ऊपर एप्लीकेशंस बनानी है ऑन टॉप ऑफ इट, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एप्लीकेशंस, देन वो आपका जॉब टाइटल होगा ब्लॉकचेन ऐप डेवलपर। ब्लॉकचेन ऐप डेवलपर को क्या क्या आना चाहिए, यू हैव टू नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आपको ये आना ज़रूरी है। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ पीस ऑफ कोड, राइट, जो कि आप उसमें कंडीशंस डाल सकते हो एंड इट विल रन। तो काइंड ऑफ ट्रस्टलेस वे में चीज़ें करने के लिए, बिकॉज ब्लॉकचेन में पता नहीं ना, इंसान एक एक अमेरिका में बैठा है, एक कहीं और बैठा है, सो यू एक्चुअली फिजिकली मीट, आप जानते नहीं हो उस इंसान को, उसकी आइडेंटिटी को। तो एक ट्रस्टलेस वे में चीज़ें करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई यू यूज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू दैट, बिकॉज कोड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जो भी आपकी कंडीशंस है, जो कुछ भी है, आप कोड में लिख दो, राइट। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट EVM राइट नाउ, विच इज इथेरियम इन्वायरमेंट, है ना। तो इथेरियम इन्वायरमेंट, इथेरियम के ऊपर अगर आपको बिल्ड करना है तो, और EVM चेन अदर देन इथेरियम भी होती हैं, EVM कंपैटिबल चेन। तो दे यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड सॉलिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए। काफ़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। सिंटैक्टिकली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा JS जैसी दिखती है, तो अगर किसी ने भी जावास्क्रिप्ट पे काम किया है तो उसको सॉलिडिटी समझने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, और इनफैक्ट किसी को नहीं आएगी, महीना 1.5 महीना लगेगा, यू विल अंडरस्टैंड सॉलिडिटी ईजिली। तो सॉलिडिटी आ जाएगी तो उसके बाद आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हो, और इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप रन करोगे ऑन टॉप ऑफ EVM विच इज़ इथेरियम वर्चुअल मशीन, राइट। अगर सोलाना साइड जाना है तो आपको रस्ट आनी चाहिए। तो वो EVM नहीं है, EVM चेन नहीं है, सोलाना एक कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है। उस पर कोड करने के लिए रस्ट एक लैंग्वेज है, वो आती है, तो आप उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड कर सकते हो और एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। इन एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड वही होता है Web 2। ये लोग आजकल नेक्स्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप नेक्स्ट या React.js में फ्रंट एंड कोड कर सकते हो, ऑलराइट, और बैक एंड पार्ट आप इससे कोड करोगे। नोड प्रोवाइडर्स तो जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लॉकचेन में अगर आपको डेटा रीड करने के लिए आपको नोड होने की ज़रूरत नहीं है, एनीबडी कैन रीड। बट अगर आपको राइट करना है डेटा, इफ़ यू आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस जहाँ पे आप डेटा राइट कर रहे हो, तो आपको दो ऑप्शन है आपके पास। पहला तो या तो आप एक नोड प्रोवाइडर सर्विस यूज़ कर लो, जैसे कि इन्फ्यूरा है, एल्केमी है। तो इनने क्या कर रखा है, इनने ऑलरेडी अपने नोड्स बना रखे हैं, तो ये API देंगे जिसके थ्रू आप उनके नोड एक्सेस कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है अपनी मशीन फंसाने की। और तो इन्फ्यूरा एल्केमी यू कैन गो चेक इट आउट। तो आप उनके API यूज़ करके यू कैन राइट डेटा ऑन ब्लॉकचेन, बेसिकली यू कैन एक्सेस ब्लॉकचेन थ्रू दीज नोड प्रोवाइडर्स। अब
अगेन ब्लॉकचेन एक्सेस कैसे करें, मतलब ब्लॉकचेन की बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, ब्लॉकचेन ये है वो है क्या है, बट दिखेगी कहाँ, ये दिखता क्या है, क्योंकि अभी तो इंटरनेट दिखता है ना, अभी तो कुछ गूगल कर कुछ भी करना है तो हम गूगल ही बोलते हैं, हम जाते हैं गूगल पे देख लेते हैं, तो हम एक्सेस करते हैं वेब 2.0 थ्रू गूगल वेब ब्राउजर एंड सर्विसेज लाइक दीज। ब्लॉकचेन कैसे एक्सेस करें, तो पहले तो एक है इथेरियम गेथ, ये एक CLI टूल है, कमांड लाइन। तो इथेरियम गेथ को यूज़ करके आप एक कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। तो करंट स्टेट ब्लॉकचेन की कैसी है अगर जानना है, और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। पहले तो अगर बेसिक्स नहीं आते तो ब्लॉकचेन के थोड़े बहुत बेसिक्स सीखो, और फिर डेवलपमेंट साइड जा रहे हो तो इथेरियम गेथ डेफिनेटली देखना, एक बार चला कर देखना अपने इसमें, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स कैसे दिखते हैं। बेसिकली आपकी आप वही है कि यूजिंग इथेरियम गेथ आप अपनी मशीन को एक नोड बना सकते हो, राइट। आपके पास एक कॉपी आ जाएगी ब्लॉकचेन की। एंड देन अगर ये चीज़ नहीं करनी है, मशीन नहीं फंसानी है फिर से, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेटामास्क इज़ एक्चुअली वेब एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आप अपना लैपटॉप खोलो, क्रोम पे जाओ, क्रोम एक्सटेंशंस में जाके मेटामास्क सर्च करो। तो मेटामास्क एक वॉलेट है बेसिकली। इस वॉलेट ये आपको एक अकाउंट बना के देगा, ठीक है। ये आपको एक पेयर ऑफ की देगा विच विल बी अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट की, ठीक है। और एंड यूजिंग दिस वॉलेट आप आपका एक अकाउंट बन चुका होगा एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में। अब जैसे कि आपको देखना है, जैसे हम गूगल एक ब्राउज़र है, राइट। मतलब सॉरी, ये अपना क्रोम एक ब्राउज़र है, और उस गूगल सर्च इंजन है जहाँ पे जाके आप पेजेस सर्च करते हो। सिमिलरली अगर आपको डेटा सर्च करना है ब्लॉकचेन के अंदर, तो ईथर स्कैन इज़ व्हाट द सर्विस यू आर लुकिंग फॉर। तो ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कहते हैं इसको। तो आप etherscan.io अपने वेब ब्राउज़र में जाके डालो, तो ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं अभी रिसेंटली, और इवन पास्ट की पूरी हिस्ट्री में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो आपको एक ज़्यादा सिस्टमेटिक रीडेबल वे में, मतलब जो नॉन कोडर्स है इवन वो भी ये काम कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अपने ट्रांजेक्शन्स, राइट। रिसोर्सेज टू फॉलो, अब आगे क्या करें, आगे कैसे बढ़ें। तो सबसे पहले तो ये रिसोर्सेज तो लिखे हैं ये ठीक है, बट अगर बेसिक्स नहीं आते तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है, जस्ट टाइप व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, वहाँ पे आर्टिकल रीड करना चालू करो, जो भी सबसे पहला, दिस इज़ हाउ आई लर्न, मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। तो जो भी आपको आर्टिकल मिलता है उसको पढ़ो, और उस आर्टिकल में जहाँ अटकते हो, जहाँ भी ऐसा कोई वर्ड यूज़ हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन या गैस फी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी वर्ड मिलता है जो नहीं पता, देन गो अगेन एंड गूगल दैट वर्ड एंड रीड अबाउट दैट। फिर उसके आर्टिकल में कुछ ऐसा मिलता है जो नहीं समझ आता, तो उसको गूगल करो, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो यही है कि बेसिक्स जाके लर्न करो, और बेसिक्स के भी क्या है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, जस्ट गो टू यूट्यूब, सर्च बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन, यू विल अंडरस्टैंड, राइट। सेकेंडली, अगर बेसिक्स आ गए या आज के सेशन में ही समझ आ गया ब्लॉकचेन क्या होती है, तो बहुत अच्छी बात है। अब डेवलपमेंट चालू करना है तो क्या करें, तो यूट्यूब पे एक चैनल है विच इज़ डैप यूनिवर्सिटी, इफ़ यू गाइस वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन। फिनेमैटिक्स एक्चुअली कोडिंग के लिए नहीं है, फिनेमैटिक्स इन जनरल सबके लिए है। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है आपके जो नए नए चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। सॉरी, ओके। तो जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, डिफरेंट टर्म्स हैं, डीफाई क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्लैश लोन्स, इस सबसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप फिनेमैटिक्स में जाके यू कैन फॉलो दैट चैनल, यू कैन फॉलो डैप यूनिवर्सिटी। अदर देन दैट कुछ वेबसाइट्स हैं, वन इज़ learnweb3.io, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए हेल्प मिल जाएगी। प्रोजेक्ट्स बनाना, बिल्कुल डरना मत, पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 हो सकता है एक महीने में एक बेसिक सही प्रोजेक्ट बना पाओ, बट स्टिल बिल्ड प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स ही रेज्यूमे में आएंगे स्टार्टअप्स में, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज इन स्टार्टअप्स और इंटर्नशिप्स, सो दे विल आस्क यू अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू हैव बिल्ट, राइट। उसमें भी इन डेप्थ जाके तो ट्राई करना जितना समझ आए। पहले दिन तो नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, पहले प्रोजेक्ट में भी नहीं आएगा, हो सकता है पहले 5 प्रोजेक्ट तक समझना है। धीरे 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 थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस टू यू, जस्ट कीप गोइंग, go to learnweb3.io, buildspace.so is a very nice initiative. It's a free वेब एप्लीकेशन, उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप जाके उसको डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर सकते हो। एंड देन cryptozombies.io, तो cryptozombies एक्चुअली एक गेम है, तो वो भी काफ़ी फन सा गेम है, आप उसको बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। उनका ट्यूटोरियल है, काफ़ी इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, बिगनर फ्रेंडली ही है ये सारी चीज़ें।
तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब जब आप बिगिनर, इसके आगे कुछ है क्या? नहीं। हाँ, तो जब आप बिगिनर कर चुके हो, मान लो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाए? तो यूडेमी पे कोर्सेज हैं, बट अगेन ये सारी बहुत बिगिनर लेवल चीज़ें हैं। इससे थोड़ा भी आगे बढ़ना है ना, तो एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज़ टू रीड डॉक्स। बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी इस फील्ड में घुसना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे ether.js एक जेएस की लाइब्रेरी है। ईथर्स को यूज़ करके आप एक्चुअली इंटीग्रेशन करते हो बैक एंड और फ्रंट एंड का। तो जो भी फंक्शंस आपने सॉलिडिटी में लिखे हैं, अगर आपको फ्रंट एंड के थ्रू नहीं यूज़ करना है, तो आप ईथर्स हो गया, web3.js हो गया, इन सब को यूज़ करते हो। तो इनके डॉक्यूमेंटेशंस हैं काफ़ी इन डेप्थ और काफ़ी प्यारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जाके उन्हें रीड करो। और जो भी नई कोई भी आपको लेट्स से लाइब्रेरी दिखती है, कुछ भी दिखता है, तो जाके उसके डॉक्यूमेंट, बट हाँ एज बिगनर मत करना, थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगेगा, समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, बोरिंग भी होता है। तो बट हाँ, अगर ये बिगनर वाले सारे स्टेप्स कर लिए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ यू गो टू डॉक्यूमेंटेशन। बिना ज़्यादा सोचे समझे सीधा जाना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। एक दिन समझ नहीं आएगा, 2 दिन समझ नहीं आएगा, हो सकता है हफ्ते भर समझना है, बट अगेन यू हैव टू कीप just trying till you figure it out. बाकी तो वही है, जहाँ भी अटको गूगल इट। प्लस वी हैव दिस सेंट्रल डाओ कम्युनिटी, सो यू गाइस कैन ज्वाइन दैट। अपने डेवलपमेंट जर्नी में जहाँ भी अटको कोई डाउट, कोई चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, so feel free to write on our Telegram channel. I am there. A lot of experienced developers are there, and they are there to help you. आगे कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, किस पे, अगर किसी का ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जैसे अभी जो लोग थर्ड ईयर में, अगर वो माइनर के लिए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट चूज करना चाह रहे हैं, तो कम्युनिटी में आओ, वहाँ लिखो, यू कैन आस्क पीपल कैसे आगे बढ़ना है। ऑल्सो यू कैन फाइंड मी ऑन टेलीग्राम, I'm the admin of that community. You can DM me कहीं भी अटको कुछ समझ नहीं आए, so you can DM me anytime, and I'll try my best to help you guys. So that's it from my side, and thank you all. Thanks for joining. Uh, okay, thank you. So we conclude the Web3 event at our college, and this was a great success. I hope the attendees gained valuable insights into the future of the internet and the potential of the decentralized technology. The speakers, Ronak Dubey, Adarsh Shamil, has provided us with a clear and concise picture of the current state. And before we move along the conclusion, let us move on to the question round. So, does anyone have any questions regarding the event or anything? Yeah, I Sure, have. sure, I Jitendra. have. Can I? Yes, please. Yeah. Sorry for my background voice. I'm traveling. The only thing I have to ask is the question is from Ronak. Ronak, I have seen your product Garify, right? As per that, I think you were in quarter 3 round and you were developing MVP. So, what were the future you were saying with Garify? Can you just tell me that? Okay, yeah. So thank you so much. Like I couldn't catch who was speaking. I guess was it Sahil? Yeah, Sahil Yeah, Jaiswal. yeah, yeah. So thank you so much, Sahil. You're asking what is the future I see with the product. So वैसे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये. So see, currently we are in our MVP stage. So MVP is not just about the tech product you are building. Okay, so MVP is anything at the most basic level. आप किसी को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे हो, या उन्हें बता पा रहे हो और उनसे फीडबैक ले पा रहे हो. सो राइट नाउ MVP स्टेज में हम इवेंट्स कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट लोगों से कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स कर रहे हैं. वी आर डूइंग आर्टिस्ट मीटअप्स एज वेल, और हम उनसे वैलिडेशन ले रहे हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ आर MVP स्टेज. एंड एट द सेम टाइम वी हैव बिल्ट prototype as well, which is open only for like the very few artists right now, and they are using that, और वो constantly उसे use करके हमें feedbacks दे रहे हैं, राइट, कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो. तो दैट इज़ आर MVP स्टेज राइट नाउ. वी आर नॉट वेरी पब्लिक विद द
प्रोडक्ट, बट हम जल्दी लॉन्च करा, फ्यूचर ये है कि हम बाय द एंड ऑफ बाय मिड मार्च वील पब्लिकली लॉन्च आर बेटा वर्जन, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स ओपन रखने वाले हैं. So anybody can come create their NFTs and sell it in a buy now pay later model. And या तो प्रोडक्ट रिलेटेड तो यही है, और फिर बेटा स्टेज से देखते हैं फिर आगे कैसे जाता है. जो भी चेंजेस, जो भी फीडबैक्स आते हैं, वील अपडेट द प्रोडक्ट. होपफुली बाय सेकेंड क्वार्टर हम लोग मेन में पूरा जो लॉन्च है, प्रोडक्ट लॉन्च है वर्जन 1, वील डू दैट. And which technology, like which blockchain you are using? Ethereum. You told me like before you were telling like Tezos and Solana, right? Mm-hmm. So Thank you. yeah, so our MVP right now, our prototype is on Polygon mainnet. That is because artists prefer Polygon, Solana, and Tezos because of their low gas fee. Right, because a lot of times artists lose a lot of money using Ethereum mainnet because the gas fee is so high. So artists and even buyers, they prefer these chains with low gas fee, and due to that reason, we are currently on Polygon mainnet. But like we are working on interoperability as well. We'll create a multi-chain environment where we'll give options to our artists to mint on multiple blockchains, including Tezos, Solana, Ethereum mainnet, all EVM compatible chains basically, and these chains like Solana and Tezos. Yeah. So thank you so much. Like I totally understand why you would choose Polygon, because I totally understand. I have been in the space as well from past 1.5 years, so I can totally relate. So thank you so much for the. Yeah. So what do you do, Sahil? Are you what's your role in this So space? so the thing is, I am being a community strategist and a community manager of India's biggest technical community. Apart from that, I have uh, I consult startup, Web3 startup to initialize their community base, the first initials, right? And we also building the startup in the Web3 with Rishi on business, if you know that. So that's Okay, how we are about to launch in the coming months. The and we that's will really great. yeah, the concept which we are using, community space, it's only maybe the one first in India. What we are concept we are using about to use, that will be a turning point maybe, because many creators have eye on us who are building in this space or building something related to community, right? Like that only. That's it. That that's really awesome. So are you familiar with Central DAO? Are you part of the community? Nope, nope. I have heard Okay. of them, but I'm not. Yeah, sure. I would urge you to join it, and Kushal here looks over partnerships and cross promotions. So if anything is possible, for if we can help you in any way, we would love to help you. Yeah, I'm So sure. Sure. We are also looking for partnerships and all in yeah, the coming sure. time, right? Yeah, so just Thank you. feel free to join the community and DM us. Okay. Yep, sure. Oh, sure. Hello, Ronak and Adarsh. This is Priyanshu from Bharati Vidyapeeth. Okay. Hello, am I audible? Yeah. Hi. Yeah, you are audible. Hi, Priyanshu. It was a great experience, like hearing your session. I was closely listening to you guys. I have few doubts and few questions, like few layman's and few technical. It would be great if you can solve, Yeah. if you guys can help me solve this. Yeah, First sure. Just question is, like, shoot. Mhm. during this past few years, Web3 has been like seeing a huge urge, like why are people and even industries are going behind Web3? Like what are the probable use cases, or like what is it leveraging to user and companies? Because you just Mhm. mentioned like Web3 is not such a huge thing, but kind of Web 2.0 and blockchain. So Mhm. how is it leveraging users and companies? Okay. So Adarsh, would you like to take this question or should I go ahead? Actually, Ronak, Adarsh is not in the meet right now, so Okay, you can okay. go. Yeah, Go all ahead. right. Yeah, so see, it's all about this new revolution about owning your data, right? About companies coming up with very radical policies
about data privacy and being the owner of your own data. So that is what gave limelight to Web3, I guess. And after that, NFTs were a huge boom to the market. I guess a lot of us probably first heard about NFTs, and then we went on to check what blockchain is. So what blockchain has given is this opportunity to or NFTs, I should say, an opportunity to these digital creators to own their digital art. Before the NFTs, there was no particular way of expressing ownership of your data, of your digital art, right? लोग बोलते हैं ना यार, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया तो क्या, like you're selling Right, right. this particular ape for $1 million, और मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसका और मैं उसको अपनी डीपी लगा लूंगा। हाँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आप बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बिल्कुल उसकी डीपी लगा सकते हो। पॉइंट वो है ही नहीं। पॉइंट इज उसका ओरिजिनल ओनर जो है वो ट्रैक किया जा सकता है यूजिंग ब्लॉकचेन। दैट इज द पॉइंट। ये काइंड ऑफ अभी And this was जिस वे regarding the में, IP, right? या सो ये तो अभी आपने जिस, आईपी के रिलेटेड बताया। अभी ये जो मेरा क्वेश्चन था कि लाइक व्हाई इंडस्ट्रीज आर अडॉप्टिंग इट, लाइक यूजर्स का तो समझ में आया, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स, explorers are using Web3 like in boom nowadays. But now, why industries are providing these platforms, or like what is advantage behind it, or what are the use cases they see behind Web3 platforms? सो सबसे पहले तो मतलब इस क्वेश्चन में इसका आंसर है विच इज़ कि यूजर्स से दिख रहा है ना कि काफ़ी यूजर्स आ रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन इट। तो डिमांड दिख रही है, तो डिमांड दिखेगी तो एक के बाद एक कंपनीज आएंगी ना। जब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो करेंटली एग्जिस्टिंग जो कंसल्टेंसीज हैं ये क्यों नहीं आएंगी? और कंसल्टेंसीज कर क्या रही हैं बेसिकली? प्रोजेक्ट्स को हेल्प ही तो कर रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स को, कि आप आओ ब्लॉकचेन पे बिल्ड करो, राइट? तो ये पूरा काइंड ऑफ ऐसे ही है। बहुत सारे लोग इसको बबल भी कहते हैं, बहुत सारे लोग का कहना है I कि बबल बर्स्ट completely हो agree गया है with your फिर। answer. Completely agree with your answer. But there are like few problems industries are facing, like हम्म providing the app versions, security related issues, and like database. Like you just mentioned, the blockchains. With the help of blockchains, we are keeping track records of every transaction or actions a हम्म user is taking. So हाँ, like सो how are they सप्लाई able चेन, to जैसे maintain सप्लाई the चेन में इसका database? बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। बैंक, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकचेन्स कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बैंक्स वर ऑलरेडी यूजिंग इट। सप्लाई चेन में काफ़ी बड़ा, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर दी सप्लाई चेन कंपनीज, उनकी मैन्युफैक्चरर्स और ये सब। अगर उनको एक सेंट्रलाइज डेटा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है यूजिंग ब्लॉकचेन, दे मेक इट वेरी सीमलेस for various participants of the supply chain to simply update the whole transition, various states of transition of the product in supply chain side बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अदर देन दैट, एज यू मैंशनड, हाँ सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली। और बेस्ट चीज़ क्या है ना, स्केलेबल बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो लेट्स से कि मैं वेब 2.0 में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक ओपन सी जैसे ही मान लो मार्केट प्लेस वेब 2.0 में बना देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा डेटाबेस है, ये है पब्लिक, इसको रीड, इसमें कोई भी रीड कर सकता है, तो आओ इधर पे ट्रांजेक्शन राइट करना चालू करो और इधर पे अपनी ओनरशिप दिखाना चालू करो। बट उस केस में क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं मेरे को सर्वर स्पेस रेंट करनी पड़ेगी, मुझे कहीं ना कहीं सर्वर्स, आई हैव टू टेक, और बहुत ज़्यादा जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाते हैं वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, राइट? तो ब्लॉकचेन का, लाइक द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन जो मेरे को पर्सनली सबसे प्यारी बात लगती है ब्लॉकचेन की, इट इज सेल्फ स्केलिंग। यू डोंट हैव टू पुट इन मोर एंड मोर मनी इनटू योर प्रोडक्ट एज योर यूजर ग्रो। मतलब ऑब्वियसली आपको, हाँ, वेब 2.0 अगर आपने कहीं पे होस्ट कर रखी है तो आपको वो ट्रैफिक मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर बैकएंड की बात करें, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग चीज़ होती है, वो वो कॉस्ट एकदम कम हो जाती है ब्लॉकचेन में आके, क्योंकि जो भी यूज़र है वही पे कर रहा है ना, मैं मेरे ट्रांजेक्शन का खुद पे कर रहा हूँ। तो कंपनी के ऊपर वो बोझ नहीं आया कि वो डेटा मैनेज करने के लिए अपने यूज़र का वो पे कर रही है, वो सर्वर डेटा सेंटर्स बना रही है, सर्वर्स बना रही है, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हार्ड डिस्क कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, ये सब बेयर कर रही है। अब यूज़र खुद ट्रांजेक्शन कर रहा है और खुद फी पे कर रहा है उसके लिए। Nice, nice, cool. Or like layman question tha, like how are industries entertaining, can be a good word, like entertaining the users, or like attracting the users to use their platform, because there are now hundred and thousand of
thousand would be the right word, thousands of Web3 platform on the internet, even like with not a good interface or like something. But how are they actually encouraging? What are the good elements you would like to suggest as a तो इसमें कम्युनिटी मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है। तो ऑलमोस्ट हर मतलब ऑलमोस्ट आई वुड से 99% of all the Web3 startups they are trying to build their communities right now। और it makes sense, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या अभी तक क्या होता था कि यूज़र कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था कंपनीज पर ही। कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसके यूज़र को संभाले। अब क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ओनरशिप है सबके पास, तो कहीं ना कहीं यूज़र ही पे कर रहा है उसके ट्रांजेक्शन के लिए, सब कुछ यूज़र है। तो अब कम्युनिटीज़ और डाउस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं कि एक के बाद एक डाउ आते हैं और ये कम्युनिटीज़ आ रही है इंक्लूडिंग आर्स। तो ये स्टार्टअप्स उन कम्युनिटीज़ को ही लेवरेज कर रहे हैं, एक वही मार्केटिंग कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में ही जाके मार्केटिंग कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैनल तो उनका वही निकल के आता है। फिर उसके बाद अब दे लाइक अगर यूट्यूब पे इफ़ द एल्गोरिथम सपोर्ट्स, अगर इफ़ यू हैव सर्च द कंटेंट, तो अब दिखने लगा होगा कि धीरे धीरे बाइनेंस के ऐड आने चालू हो चुके हैं। मेरे को तो शायद आई गेस ओपन सी का भी कोई ऐड आया था यूट्यूब पे किसी दिन। सो अगेन ये सारे चैनल्स हैं जो वो मार्केटिंग के लिए और यूज़र एक्विजिशन के लिए कर रही हैं। दे आर राइटिंग ब्लॉग्स, कंटेंट साइट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है कंपनीज कस्टमर एक्विजिशन पे। तो एक तो कम्युनिटी मैनेजमेंट हो गया, इवेंट्स हो गए, कंटेंट राइटिंग, एसईओ हो गया। सो दीज आर द मेन चैनल्स दैट दे आर यूजिंग। और कंटेंट और इसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट ही बता रहे हैं लोगों को, उन राइट वो लाइक जो भी फीचर्स हैं दैट इज़ व्हाट दे आर सेलिंग टू द यूजर्स। कि वॉट एवर लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ यूनिस्वैप। तो व्हाट वुड यूनिस्वैप डू, वो बताएगा कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और आपके पास कोई भी टोकन हो, आपको किसी और टोकन में कन्वर्ट करना है, सो कम टू माई प्लेटफॉर्म एंड यू कैन डू दैट। सो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा है, लाइक यूनिस्वैप और इन सब के केस में, ओपन सी के केस में देखने मिला है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो यूजर्स हैं, वही जाके बताते हैं कि यार ये बड़ा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, मैंने यूज़ किया। सो कम्युनिटीज़ हो गई, ये सब हो गया। So that is how they are getting their users right now. cool. Again, with the community thing, like who all are this community? Like what are their role actually? Like you, if I'm not wrong, you mentioned communities are also suggesting changes to the platform or to Yeah, the yeah. Web3 service provider. So, Mhm. like, are the users are also included in this community or only the developers? So communities ना केवल डेवलपर्स की तो नहीं है, फॉर श्योर कम्युनिटीज बेसिकली Right. यूजर्स की ही है। तो ये पोटेंशियल यूजर्स हैं, जैसे कि अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट नहीं है बट वी हैव आवर डिस्कॉर्ड। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि हम अपने वी आर बिल्डिंग इन पब्लिक, वी आर शेयरिंग थिंग्स, हम उनका फीडबैक ले रहे हैं। तो ये पोटेंशियल यूजर्स हैं हमारे केस में। ओपन सी और इनके केस में बात करो तो इनकी कम्युनिटीज़ में इनके यूजर्स हैं, एंड देन अगेन जो नए लोग आ रहे हैं जो पोटेंशियल यूजर्स हो सकते हैं। तो इसलिए देखना अभी कॉइनडीसीएक से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फॉलो कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल इन इंडिया अबाउट वेब3 डेवलपमेंट, Web3, वेब3। right. या सो उसके पीछे रीज़न यही है कि अपना पोटेंशियल, ये मार्केट बढ़ा रहे हैं अभी तो केवल, तो दे आर बर्निंग सो मच मनी टीचिंग पीपल And अबाउट। educate. तो वही हो रहा है। वैसे आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ योर, व्हाट वाज योर क्वेश्चन दो? My question was like, how are this हाँ community actually helping? हाँ हाँ हाँ। तो What are इसके पीछे their ना main एक बहुत contribution? बड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन टोकन इकोनॉमी भी है। सो आर यू फैमिलियर विद टोकन इकोनॉमी? No, not exactly. Like, please can you सो explain? या तो जैसे टोकन्स क्या होते हैं कि नए नए ये जो वेब3 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो अलॉट ऑफ देम हैव देयर ओन नेटिव टोकन। यानी कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरा टोकन यूज़ करो, ठीक है। तो अब ये टोकन की वैल्यू आएगी कहाँ से? ये टोकन की वैल्यू तभी तो आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे होल्ड करेंगे, उसमें ट्रांजैक्ट करेंगे, राइट। सो उसके लिए आपको एक कम्युनिटी चाहिए, उसके लिए आपको डाओ चाहिए। तो डाओ मेंबर्स क्या होते हैं कि जैसे एक डाओ है विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर नहीं है, राइट। तो जो भी चेंजेस होने हैं प्लेटफॉर्म में, जैसे इथेरियम के केस में, तो अभी इथेरियम का इथेरियम 2.0 वर्जन जो आया है, तो ये डिसीजन किसने लिया? तो ये डिसीजन कम्युनिटी ने मिलके ही लिया। और वो क्यों ले पाए? बिकॉज दे हेल्ड टोकन्स। तो उधर भी वोटिंग राइट्स उनके पास थे जो एक्चुअल में ईथ ओन करते थे।
सो दोज पीपल, तो इसलिए नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, वो अपनी कम्युनिटीज़ जो डाओ हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं कि जैसे लेट्स से मैं गियरफाई के कल को टोकन निकालूं, तो पहले तो मैं टोकनॉमिक्स ऐसी रखूंगा कि 1 मिलियन टोकन्स तो मेरे पास ही होंगे, 1 मिलियन टोकन्स आदर्श के पास होंगे, फिर जो कोर टीम है हम उनमें बांट देंगे 20-20 हज़ार टोकन है ऐसे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट विल कि हम अपनी कम्युनिटी में जाके अपना प्रोडक्ट पिच करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि ये देखो हम ऐसी चीज़ ला रहे हैं, ये ऑसम चीज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, तुम बहुत अमीर हो जाओगे। ठीक है, फिर ये बोलने के बाद हमने कहीं ना कहीं उन्हें इंटरेस्ट जगाया उनमें। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, विल टेल कि सी हमारा टोकन भी है, सो यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यू वांट टू टेक लाइक, अगर आपको वोटिंग राइट्स चाहिए या प्रोडक्ट में कैसे चेंजेस होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, अगर आपको वो सब सजेस्ट करना है, तो आपको पहले टोकन ओन करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक अथॉरिटी आएगी, राइट, वोटिंग राइट्स आएंगे। सो उससे कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी और टोकन की प्राइस भी बढ़ेगी। सो दिस इज हाउ अर्ली यूजर्स आते हैं, जो अच्छा प्रोजेक्ट देखते हैं उसके टोकन्स खरीदते हैं, कुछ समय बाद टोकन की वैल्यू बढ़ती है, वो टोकन सेल करके भी अर्न करते हैं। तो टोकन इकोनॉमी इज अ वेरी 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 बिग, बेसिकली मेजर रीजन तो वही है, मेरा सबसे पहला आंसर वही होना चाहिए था। टोकन इकोनॉमी की वजह से ही कम्युनिटीज है, बेसिकली उसको सपोर्ट ही कम्युनिटी करती है, टोकन इकोनॉमी को। Right, right, right. Great. Thanks. Thanks. It helped me a lot to understand what exactly Web3 is, what blockchain is, and all the things. Thanks. Yeah. Thanks, man. Yeah, thank you so much for joining. Does anyone else has any question? Any questions? All right, so we can wrap this event now. So it was evident from the active participation and the enthusiastic discussions that the audience was deeply engaged and eager to learn more. We hope that this event has inspired attendees to continue exploring the exciting world of Web3 and its potential to shape the future. I also like to thank Kushal Paliwal for his efforts and dedication in coordinating the event. The event ran very smoothly and ensured everyone had a great time. Your contribution is greatly appreciated. Thanks to all the participants to attend this event. Thank you so much. Hope we have another event like this soon. Thank you. Yeah, thanks for Thank calling you us. so Have a great day. much, and all the students who are here. So thank you so much for an amazing event today. I guess people are asking